آج اڈیالہ جیل میں ٹیوزڈے والے دن کے حساب سے وکلاء کی ملاقات جو 2 بجے ہوا کرتی ہے، وہ ملاقات ہماری خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں القادر کیس بھی تھا جو پہلے سے ایڈجن ہو گیا تھا جورسڈکشن کے بیس پہ جمعے والے دن کے لیے۔ آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور مختلف قسم کے موضوعات زیر بحث آئے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خان صاحب کی ایک ریکویسٹ ہے، اس کے لیے ہم قانونی کارروائی پہلے کر چکے ہیں، لیکن ہماری یہ درخواست ہے، اب ہائی کورٹ ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ وہ یہ ہے کہ گزشتہ 11 مہینوں سے خان صاحب جیل کے اندر ہے، لیکن ان 11 مہینوں میں آج تک 11 مرتبہ خان صاحب کی بات ان کے بیٹوں کے ساتھ نہیں کرائی گئی ہے۔ خان صاحب نے اس سے ایکسیپشن لیتے ہوئے ریکویسٹ کی ہے کہ میرے بچوں سے ایک واٹس ایپ کال نہیں ملائی جاتی، ہم اس کے انفورسمنٹ کے لیے عدالت جائیں گے کہ خان صاحب کے اگر ہر ہفتے نہیں ہے تو دوسرے ہفتے جو کورٹ کا پہلے سے ایک آرڈر موجود ہے اس کو انفورس کیا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بات کر سکے۔ دوسری بات، آن اینڈ آپ لوگوں نے ڈائلاگ کا ذکر کیا ہے، آج بھی خان صاحب نے اس بات کو اعادہ کیا ہے کہ ہم نے جو ڈائلاگ کی بات کی ہے سب کے ساتھ آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے اس ملک کے آگے لے جانے کے لیے، کیونکہ خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ میرے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں میں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اور وہ میں معاف کرتا ہوں، لیکن ڈائلاگ کے سلسلے میں آج خان صاحب نے دوبارہ اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہمارا ڈائلاگ کا جو بیانیہ ہے وہ ڈائلاگ آج بھی کنٹینیو کرے گا، اور ہم انشاءاللہ تعالی اب ڈائلاگ اتحاد کے بیس پہ بھی انشاءاللہ تعالی محمود خان اچکزئی کی سربراہی میں اپنا ڈائلاگ کنٹینیو کریں گے۔ آج خان صاحب نے اس کی بھی اجازت دی کہ ڈائلاگ کو آگے بلا محمود خان اچکزئی صاحب بھی آگے بڑھائیں۔ آج خان صاحب نے بجٹ آنے والے بجٹ کی بھی ڈائریکشن دی ہے۔ خان صاحب بہت کنسرن ہے ملک کے اکانومی کے بارے میں، معاشی حالت کے بارے میں، چین کے دورے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ ملنے کے بارے میں یہ کنسرن ہے کہ ملک کے معاشی حالات اس نہج پہ پہنچ گئے جو اپنے ڈیلی جو اوقات ہے اس کو پورا کرنے میں حکومت ناکام ہو رہی ہے۔ اس لیے اکانومی کا ایک سب سے بڑا کنسرن سب کے پاس ہے۔ خان صاحب نے آج بھی اس پہ بہت کنسرن کا اظہار کیا ہے۔ ساتھ ساتھ خان صاحب کی طرف سے یہ ہماری ریکویسٹ ہے عدلیہ سے کہ خان صاحب نے آج بھی کہا ہے کہ میرے جتنے کیسز ہیں یہ پہلے بھی ہم ریکویسٹ کر چکے تھے عدلیہ سے، آج پھر ایک عدلیہ سے ہماری درخواست ہے کہ خان صاحب کے جتنے بھی کیسز ہیں آج عدلیہ کے سامنے وہ عدت والے کیس میں سسپینشن کی بات ہو رہی ہے، اس پہ بھی ہم عدلیہ سے درخواست کر رہے ہیں کہ جتنے جلد سے جلد ہو جائے ہمارے کیسز پہ برائے مہربانی قانون کے مطابق اپنے فیصلے صادر کریں۔ بڑی تفصیلی گفتگو آج جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، جس کے بارے میں بیرسٹر گور صاحب نے آپ کے سامنے معروضات رکھی ہیں۔ آج ان کو ہم نے آگاہ بھی کیا کہ ہائی کورٹ میں بھی آج ہیئرنگ ہوئی، جو اسلام آباد کے 3 کیسز ہیں، شعیب شاہین صاحب کا جو حلقہ ہے، علی بخاری صاحب کا جو حلقہ ہے اور عامر مغل صاحب کا، اس پہ آج ہیئرنگ ہوئی، اور جو ٹرائیبیونلز میں کیسز ہیں اس کے حوالے سے آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں، ریزرویشن کا اظہار کیا ہے کہ اگر صرف 1 سال پہلے حکومت نے الیکشن کے قوانین میں تبدیلی کر کے جو ریٹائرڈ ججز کا ایک آپشن تھا وہ ختم کیا تھا، تو آج چیف جسٹس صاحب نے پوچھا کہ پھر آپ نے دوبارہ اس کو کیوں ڈالا؟ آپ اپنے ذہن میں شاید حکومت کلیئر نہیں ہے۔ دوسرا سوال آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس بات پہ اٹھا، جس سے آج جناب عمران خان صاحب کو ہم نے آگاہ کیا کہ چیف جسٹس صاحب نے حکومت سے استفسار کیا کہ جب قومی اسمبلی کا اجلاس 3 دن بعد ہونے والا تھا تو پھر آپ کو آرڈیننس سے
कानून में तब्दीली करने की क्या जरूरत थी, और वो भी केयर टेकर प्रेसिडेंट से, क्योंकि जरदारी साहब तो मौके पे मौजूद नहीं थे, तो चेयरमैन सेनेट साहब से ये करवाने की क्या जरूरत थी। उस पे हमारे वकला ने ये नुक्ता भी रखा जब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की कि ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी, जब 3-4 दिन बाद कौमी असेंबली का इजलास था और वो भी केयर टेकर सदर से क्यों करवाया गया। तो हमारे वकला ने ये नुक्ता भी रखा कि हुजूर वो सदर भी खुद गिलानी साहब की तरफ इशारा था कि गिलानी साहब के तो खुद के केस जो हैं वो ट्राइब्यूनल्स में हैं, तो वो किस तरह एक ऐसे कानून पे दस्तखत कर सकते हैं जब वो खुद उसमें उन पर सवालिया निशान है। आज की गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी बात की है जो आगे का रास्ता दे सकती है। उन्होंने ये कहा कि हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, लेकिन मुज़ाकरात मानी खेज होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं होने चाहिए। ना मैं ये समझता हूं ना अभी तक हुकूमत की तरफ से कुछ संजीदा इक़दाम लिए गए हैं और ना कहीं और से कोई ऐसी बात की गई है जिससे मामलात के हल की तरफ कोई ना कोई रास्ता बने। दो ही बुनियादी नुकात हैं जो पिछली भी मुलाकात में इमरान खान साहब ने किए और आज भी हमने रेस किए कि इसके अलावा तीसरा कोई बुनियादी नुक्ता है ही नहीं। पहला असीरान की रिहाई, और उस अजीम आदमी को आज भी सलाम करने को दिल करता है कि वो इस गर्मी में अडयाला में डेथ सेल में पड़ा हुआ है, वो अपनी रिहाई की बात नहीं कर रहा, वो किसी डील की बात नहीं कर रहा। और ये ध्यान में रखें कि मुज़ाकरात और डील में फर्क होता है। हम मुज़ाकरात के लिए हामी है, डील के लिए नहीं। इसलिए अभी तक 300 दिनों से इमरान खान 300 दिनों से जेल में है कि वो डील नहीं कर रहा, वो सिर्फ मुज़ाकरात की बात कर रहा है। जो डील करते हैं वो बक्सों समेत सऊदी अरब या बक्सों समेत वो लंदन पहुंच जाते हैं, वो है डील वाले, ये मुज़ाकरात वाले। लेकिन मुज़ाकरात, आप ये बताइए, असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी, ये दो बुनियादी नुकात हैं, तीसरा कोई नुक्ता फिलहाल नहीं है। पहले मैंडेट का फैसला हो, असीरान की रिहाई हो, को खुदा लगती बात करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद 80-85 साल कैंसर सर्वाइवर वहां जेल में पड़ी है। सनम जावेद हमारी छोटी बहन बच्ची की उम्र की, और जिस तरह कल आपने देखा होगा उसको तपती धूप में पुलिस वैन में 2-3 घंटे खड़ा किया गया ताकि उसको टॉर्चर किया जाए। आलिया हमजा साबिका MNA और एक इंजीनियर है तालीम के लिहाज से, और एक खातून पॉलिटिकल वर्कर के साथ ये ज्यादतियां, और फिर जिस तरीके से हमारे और असीरान और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे पर्चे हो रहे हैं। आज हमने इमरान खान साहब के सामने मैंने ये बात भी रखी कि हम गए, हमने लॉयर कन्वेंशन किया कराची में, लेकिन उसी तरह जब शहरियार खान अफरीदी गए बलोचिस्तान, तो क्या बलोचिस्तान नो गो एरिया है? आज इमरान खान साहब के नोटिस में हम ये चीज लेके आए हैं कि सिर्फ एक वर्कर कन्वेंशन और लॉयर्स के साथ मिलकर बलोचिस्तान पिशीन में बोस्तान में करने पे शहरियार खान अफरीदी और शानदाना गुजार साहिबा पे गद्दारी के पर्चे कटे, साहिवाल में वर्कर कन्वेंशन करने पे लोगों पे पर्चे कटे, रिहाना डार बीबी घर में वर्कर कन्वेंशन करना चाहती थी, उनके गिर्द मुहासरा खींचा गया, किसी वर्कर को जाने नहीं दिया। और उसी तरह हाफिजाबाद में वर्कर कन्वेंशन में हमाद अजहर गए और सब पे पर्चे कटे हैं। और कल जो हमारे अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब खान के साथ हुआ है, आज मैंने हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के सामने भी ये बात की, और आज वही बात इमरान खान की भी गोश गुजार की कि जनाब उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं, दहशतगर्दी की अदालत सरगोदे में उनकी पेशी थी और पेशी पे जा रहे थे। उनको शौक नहीं था, दहशतगर्दी की अदालत कोई सैर की जगह नहीं है, वो वहां जा रहे थे, आम MNA भी नहीं, अपोजिशन लीडर, और बीच में पुलिस खड़ी हो गई और 6 घंटे उनको दहशतगर्दी की अदालत में हाजिरी नहीं करने दी। और उस पे आज मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स ये थे कि ये तो ऑब्स्ट्रक्शन टू जस्टिस के बराबर है कि आप एक मुवक्किल को या एक साइल को, एक मुद्दई को या एक मुलजिम को या एक पाकिस्तानी को, ये मेरे अल्फाज हैं, आप अदालत में ना जाने दें। ये सारी चीजें आज इमरान खान साहब की गोश गुजार हमने की हैं। उन्होंने कारकुनान को आखिरी बात अपने हौसले बुलंद रखने का कहा है। ईद के बाद इंशाअल्लाह अगर मुज़ाकरात के जरिए मामलात का हल नहीं निकलता तो हम एहतजाज को एक नई रुख भी दे सकते हैं, उसके लिए भी कौम तैयार रहे। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, हर जगह हमारा कारकुन इमरान खान साहब के साथ उसी तरह डट के खड़ा है। और आखिरी बात,
इमरान खान साहब ने फिर ये बात की है कि मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन जिस तरह इन्होंने डेथ सेल में रखा है, दुनिया के सामने जो है इनका चेहरा बेनकाब हुआ है कि साबिक वजीर आजम को जिस तरह एक छोटे से कमरे में रखा है, शर्म आनी चाहिए सबको जो ये लोग कर रहे हैं। गौर साहब, इससे पहले खान साहब कहते थे कि मुज़ाकरात होंगे उससे होंगे जिसके पास ताकत है। अब हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात एक गुड जेस्टर है, वक्त पिघल रही है, लेकिन दूसरी तरफ से इस पेशकश का रिस्पांस कैसा है? देखिए, हम ये समझते हैं कि जो लोग बेनिफिशरी है कोई करप्ट सिस्टम के, और वो लोग बेनिफिशरी है जो अपने ओहदों पे रखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो इसके तरफ माइल नहीं होंगे। ले हम चाहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों तरफ होनी चाहिए, और ये हमारा एक मस्बत इक़दाम की ज़्यादती भी हमारे साथ हुई है और ऑफर भी हम कर रहे हैं और बड़े अरसे से कर रहे हैं। तो बात आगे बढ़नी चाहिए, डायलॉग की बात आगे ज़रूर बढ़नी चाहिए। 3 कमेटी बनाई गई थी, 3 मेंबर थे उसके अंदर। डायलॉग करेगी, लेकिन कोई डायलॉग नहीं हो रहा। फिर आप कहते हैं कि इमरान खान ने डील नहीं करनी। नहीं, जहाँ तक देखिए ऑफर शफर नहीं है, डील की कोई ऑफर नहीं है, ना ही हम डील कर रहे हैं, ना एनआरओ की तरफ जा रहे हैं। देखो, डायलॉग एक अलग बात है और डायलॉग की बात वो होने चाहिए, और अगर किसी और तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस नहीं भी आता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम गिव अप कर लें। जो पावर ब्रोकर्स है वो भी बड़े संजीदा होने चाहिए, और जो दूसरी कुव्वतें हैं वो भी होने चाहिए। होना ये चाहिए कि आगे बढ़ेगी तो बात बनेगी, और आगे बढ़ने चाहिए। देखिए, उसकी रीज़न यही है कि अगर हम बारहा ये कह रहे हैं कि हम एक 70% पॉपुलैरिटी रखने वाली जमात है, तो हमारी सबसे ज़्यादा एक नेचुरल लाइन से उन लोगों के पास जो पावर ब्रोकर हुआ करते हैं, और हम ही पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, और हम किसी सूरत नहीं चाहते कि मुल्क ऐसी सूरत हाल से दो चार हो जिसमें से पॉलिटिक्स जो है अगली टर्न ले ले। हम किसी सूरत ये नहीं चाहते, इसलिए हम बारहा ये कहते चले आ रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं और रिन्यू करके कह रहे हैं कि डायलॉग आगे बढ़ने चाहिए और मीनिंगफुल होने चाहिए, और सब उसमें इन्वॉल्व हो ताकि हम आगे कोई रास्ता निकालें कौम की।